مریم نواز جب بھی کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں ان سب چیزوں کے اندر نا ایک چیز بڑی مشترک ہے کہ ان کے جانے سے پہلے نا مراسلہ ایک جاری ہوتا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہر قسم کی سرگرمیاں جو ہے منسوخ کر دی جائے. یہ کیا حرکت ہے؟ یہ مجھے ایک تو اس بات سے بڑا اعتراض ہے کہ مطلب اگر ایک یونیورسٹی میں اگر چیف منسٹر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ یونیورسٹی کا کام روک دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ جب بھی جاتی ہے یونیورسٹی وہاں پہ جا کے سیاسی گفتگو شروع کر دیتی ہے. کوئی ایجوکیشن کے بارے میں بات کیجیے, کوئی ان کو کنونس کیجیے کہ یہ جو آج کا نوجوان ہے یہ پاکستان چھوڑ کے نہ جائے. وہاں پہ جا کے صرف پاکستان طریقے صاحب کو برا گلا کہہ دینے سے یہ بچے کنونس نہیں ہوں گے. میری بات مانیے اس بات. میں آپ سے درخواست کروں گا سوال کیجیے گا جا کے ان سے نیکسٹ ٹائم کسی یونیورسٹی میں جاؤ بند کرائے بغیر تو جا کے نا وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹ سے کہیے گا کہ بچوں جواب دو میرے ایک سوال کا. بتاؤ تم میں سے کتنے لوگ بڑے ہو کے نواز شریف بننا چاہیں؟ لڑکیوں سے جا کے پوچھے گا بچوں بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ مریم نواز بننا چاہتے ہیں. بچوں کے اندر مسلم نون کو لے کے جو ایک سب سے بڑا ایک کنسرن ہے وہ اس بات کا بھی ہے کہ اگر آپ اس جماعت کو ووٹ دیں, اس جماعت کے اندر شامل ہو جائیں, آپ ٹاپ پہ تو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ٹاپ پہ تو انہوں نے ہر صورت شریف ہی بٹھانا ہے. پہلے باپ بیٹھا ہوا تھا, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, کل کو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بیٹھا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان میں قربان عمران خان. نیوز فیوز فرام سوشل میڈیا. اچھا جی یہ بھی کر لیں. سب سے جو زیادہ ہے نا جو تکلیف دہ ہو رہی ہے, جو موٹر چلا دیتے ہیں نا پیچھے سے ڈال کے نا اندر, تو ڈرل مشین ڈال کے تو موٹر چلا دیتے ہیں. یہ موٹر چلانا مینول موٹر بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ سے بھی چلاتے ہیں, اس کو بھی موٹر چلانا کہتے ہیں. اندر جو ہوتے ہیں تو وہ پچھواڑے میں اس کے لگی. ڈیلی ٹیلی گراف نے جو عمران خان کی ہسٹری کی ہے یہ 3 دن پہلے کی, کہتے اج لبنا شروع کر دو. ہاں جی 3 دن پہلے کا اخبار دیکھنا تو اس میں جو تھی تو میں نے کہا تھا یار لوگ ادھر ادھر بات کر رہے تھے, چلو ہم بھی اس پہ بات کر لیں. چلو جی ٹھیک ہے. زبیر ڈار یعنی شبیر ڈار عمران خان کا پی ٹی آئی کا تھا, چلا گیا تو بڑا وہ جو ہے نا وہ اخلاق ڈار کو نا بھول جانا. جو بلے علی سرکار رات کو کہہ رہا ٹھیک, تو سویرے انہوں نے صرف 5-6 جہاں پڑے تھے تو کہہ رہا نہیں جی نہیں میں ان کے ساتھ کیوں. وہ ایک ڈار بھی ہے گا سیال کوٹ والا. اچھا جی اس نے بھی کہہ دیا یار عمران خان نے جو کاٹی ہے نا سزا وہ بس یہ اسی کا کام تھا. باقی 2 میں سے اس نے تو گالی گلوچ تک دے دی تھی, تو اس کا ذکر خیر کرنا ہے. جو سچ بولے گا حق سچ کے تو ہم ساتھ ہیں نا, حق سچ کے ساتھ ہیں, ہم ہیں اس کے ساتھ نہیں. انصار باسی صاحب ادھر کو چل رہے ہیں, نجم سیٹھی صاحب ادھر کو چل رہے ہیں. واہ جی واہ کیا کہنے ان کے 2 پالتو کتوں کے, کیا کہنے. لیکن وہ جو ہے صحیح کہہ رہا ہے جو نجم سیٹھی کہ یہ اس کے ساتھ نبھانی پڑے گی آپ کو, اس کو اگنور نہیں کرنا کر. لیکن انصار باس الٹ کر اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ کریں گے, یہ نہیں کیا تو یہ کریں گے, یہ نہیں کیا تو یہ کریں گے. پہلے اتنی دیر سے خان نے کیا کر لیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کی برین واشنگ کس طرح خان نے کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ چھوٹی بچی جو بریکنگ نیوز میں نے دکھائی تھی اس کے ماں باپ یوتھیے گئے نے, اب کہ جو دبئی بھاگ گئے تھے, آ جائے گی جی سنا واپس آ جائے گی. وہ شو کا نوٹس ایشو ہو گیا جنہوں نے منصور شاہ کا بینچ آج نہیں بنایا تھا. تو اس ٹائم جو ٹیپٹا سے سپریم کورٹ میں جاری و ساری ہے وہ جو قاضی پارٹ 2 کیا عمران خان نے کہا تھا, اس کو کہا تھا قاضی کی باقیات ہی, قاضی کے گندے انڈے. کوئی لکھ دیجیے گا اگر کسی کو پتا ہو. وہ بول گئے عمران خان نے یہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا بھی کوئی نام رکھ دیا, اور رضی دادا کو تو باندر کہا تھا نا, تو اس کو کہا تھا ریلو کٹا, پھر اور بھی جو خان نام رکھ دیتا ہے, اس کا بھی کوئی نام رکھا ہوا ہے. مجھے یاد آ گیا تو میں بتا دوں گا. پرویز خٹک نے بیان دے دیا مجھے یہ اس نے بتایا تھا تو میں نے کہہ دیا, مجھے یہ انکوائری افسر نے بتایا, مجھے یہ بات بھی انکوائری افسر نے بتایا, تو پھر گواہی دے نکلا کے گیا جی اپنا. بس کتے کو کھیر ہضم نہیں آتی. ہاں کتے کو کھیر ہضم نہیں آتی. لیکن ایک وجہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا نا فاشزم بڑے بڑے ہوئے فاشزم آپ نے حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ہوئے, حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ہوئے, حضرت کرشن علیہ السلام کے دور میں بھی, ہر دور میں چلتے رہتے. اگر جو موجودہ فاشزم آپ نے دیکھنا ہے نا پلیز توجہ فرمائیے گا, آگے ہو کے سننے والی بات ہے.
हज़रत अली से शुरू करके तो 12वें इमाम तक जाना। इनको एक लिस्ट इमामों की बना देना, उनको देख लेना इनके अपोनेंट क्या हो रहा था, वो हो रहा है आजकल। जो जो फस्ताइए, जो जो जुल्म हो रहा है, फिर आप कहेंगे आप इधर शिया ना में करो। मैं आपको बता रहा हूँ उनके अपोनेंट आप देख लेना क्या हो रहा था इनके। ये मतलब कि जो देखेंगे ना हज़रत अली का अपोजिट वो कितने सहाबा कराम भी थे, तो अपोजिट कौन था, किन्होंने जाके जंग जमल लड़ी थी, इमाम हसन के मुकाबले पे कौन था, इमाम हुसैन के मुकाबले पे कौन था, और वो क्या क्या कर रहे थे। वही कुछ हो रहा है, जालिम और मजलूम के साथ ही होता है सदियों से। लेकिन ये नकल वो मार रहा है जो है ना इलीगल आर्मी चीफ, जिसको खान कहता है रिटायर बंदे को नजायज़ लगा दिया, वो वही कुछ कर रहा है जो इन 12 इमामों के अपोनेंट करते आया है। मेरा चैलेंज है ये आप देख लेना, आप कहना यार ये काम तो 12 इमामों में नहीं हुआ था। मैं बताऊंगा कि ये किस इमाम ने किया के दौर में और किसने किया था। इमामों के अपोजिट भी तो कोई थे ही ना। हाँ जी, वो थे यजीद के खुलफा जो 12 और 32-33 थे, अब्बासी खुलफा, हारून रशीद, मामून रशीद। उसके बाद इन्हीं में से ऑटोमन एम्पायर आ गई थी, लेकिन वो 12 इमाम बस वहीं तक अब्बासी खुलफा तक ही रहे। गौहर भट्ट साहब अंदर गए थे, वो गौहर भट्ट से कट्टड़ है ये पटवारी कट्टड़ है, उसको मरियम ने कहीं फिट भी मेरे को पीडीवी में कहीं फिट करवा दिया, 10-12 लाख रुपया ले रहा, वो भी साथ गया था। तो वो गौर भट्ट को, मरियम ने गौर भट्ट को पूछा कि तुझे कहा था बांदर, उसने तुझे बांदर कहा था, तुझे ये नहीं आपको, या किसको बांदर कहा था, उसने कहा तुझे कहा था बांदर। बांदरों की तरह पुड़की मारता है ना। उस वक्त इतना पॉपुलर भी नहीं था। अच्छा जी, 18+ वालों के लिए ज़रा टीवी के आवाज़ म्यूट कर दी जाए, बड़ा मज़ेदार ये किस्सा। ये डबिंग हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लड़का इस कमाश का नहीं है, बड़े घर से भी होके आया था, पांजा कहा के आया। लेकिन सनी लियोन का जिक्र पढ़ रहा था कि जो सनी लियोनी है उसकी जो जायदाद है वो 6 अरब डॉलर है, और हमारे अकेले मुल्क के पाकिस्तान की जायदाद जो है वो 2 अरब डॉलर है। यानी सनी लियोनी की जायदाद जो है वो हमसे 4 अरब डॉलर ज्यादा है पूरे पाकिस्तान से। हालांकि मारी दोनों की बराबर ही गई है। बड़े बड़े करने इसका नोटिस ले लिया। अब पिछला पांजा ये लड़का भूल गया, वो उधर उधर उस जिले से है, वो परला ज़िला जो जिधर की सरताज गोलू वगैरह, ये उस ज़िले का हैगा। मारी दोनों के बराबर गई पाकिस्तान की जरदारियों ने और नवाज शरीफों ने मारी है, उसने इसने कहाँ से मारी है वगैरह वगैरह। लेकिन वो अभी तक तहकीक हो रही है कि इसने उस्मान बुज़दार को क्या देख के लगाया था। वो उस्मान बुज़दार वो ऐन वाला चक्कर ही था या कुछ और चक्कर था, इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। वो हम फिर उसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, फिर हमने लिहाज थोड़ा ही करना। अच्छा जी, सरबराह मजलिस वहदत मुसलमीन पाकिस्तान सेंटर अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी की सिक्योरिटी ख़त्म करने का फ़ैसला मुतासबाना इंतकामी इक़दाम है। हुकूमत फौरी तौर पर अपना फ़ैसला वापस ले। अमन व अमान की संगीन सूरत हाल के बावजूद एक कौमी रहनुमा की सिक्योरिटी वापस लेना गैर ज़िम्मेदार गैर कानूनी अमल है। गैर मजलिस वहदत मुसलमीन वगैरह वगैरह। अच्छा, रिजवान गलजई जो कहते हैं मैं अरशद शरीफ का शिगिर्द हूँ, उसने कहा सेंट्रल अमन नासिर अब्बास को लाख खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने 10 साल से जो सिक्योरिटी दे रखी थी, 10 साल से वो वापस ले ली गई है। अल्लामा नासिर अब्बास का कसूर सिर्फ ये कि इमरान खान के बातमात साथी वगैरह वगैरह है। तो वो अल्लामा साहब के साथ दूसरी भी ये ले ली, तो बस क्या किया जाए यहाँ पे, उसका क्या 10 साल से तो थी वहाँ पे। अब देख लें कि 14 से अब 24 गुजरा या 25 गुजरा, तो नवाज शरीफ ने यूज़ दी थी उस वक्त। वहाँ ये पीछे पारा चनाट के रहने वाले हैं ना, इस वजह से। एक लफ्ज़ और सुनिएगा ज़रा, एक और वो हमें तो नहीं We don't have judges sitting in the courts. We have most of them are the robots sitting in the courts. They're not sensitive. रोबोट I'm extremely sorry to say. रोबोट जज बैठे ने, We have judges sitting ये in the जनाब courts. अली We have कुछ चस्का most of पाता them है। are the robots. ये इमरान खान का वकील है,
तो जज बैठे हुए हैं वहाँ, कह रहा हमने ये जज नहीं बिठाए हुए, रोबोट बिठाए हुए। रोबोट में भी प्रोग्रामिंग जाती, वो अपनी मर्जी थोड़ा ही करता है। नहीं नहीं नहीं, लोग कहते जो जाके खाना देता है ये वो, उसमें प्रोग्रामिंग फीडिंग की जाती है। तो ये रोबोट, जिसको रोबोट कहते हैं ना, ये वो बैठाए हुए हैं, हमने अपनी कोर्टों में रोबोट बैठाए हुए हैं। अच्छा ये जी, बात हम भी कर रहे हैं कि जी सियासत एक कदम आगे जाती है फिर कई कदम पीछे चली जाती है। इस वक्त तमाम लोग एक बंद गली में है, चाहे पीटीआई हो, उनके पास भी ऑप्शंस महदूद हैं, पीएमएल के पास तो ऑप्शंस बहुत ही महदूद हैं। इस वक्त बातचीत अगर करेंगे भी एक दूसरे को, कौन कितने कंसेशन दे पाएगा? क्या आपको लग रहा है इस वक्त इधर से कैपेसिटी, मैं अब कैपेसिटी का सवाल पूछ रही हूँ, होना क्या चाहिए हम सबको मालूम है, लेकिन आपको लीडरशिप में कैपेसिटी नजर आ रही है इस जगह से निकलने की? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी सियासत गिरवी रख दी है पावर इक़्तिदार के लिए, और सियासत ख़त्म कर दी है। बस वो अब एक शरीफ फैमिली को वो जो आखिरी पावर की हिचकियाँ हैं वो कर रही हैं कि भाई हमने वोट को इज्जत दो छोड़ दिया, एक जगह बेटी चीफ मिनिस्टर बन गई, एक जगह भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, समझी कुछ और बन गया, वगैरह वगैरह। तो मुस्लिम लीग नून बेसिकली जो लीडरशिप फैमिली थी, शरीफ फैमिली, उसका एकदम जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं कंपेयर टू जो मुस्लिम लीग के गोल्स होते थे। एक पार्टी है पाकिस्तान की, बड़ी पार्टी है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा रही थी, उसके गोल्स और मुस्लिम लीग के गोल खत्म हो गए। इमरान खान साहब ने मेरे जो ऊपर से आर्डर आता है थोड़ी सी चुंडी उड़ाने के लिए दे देते हैं क्या पीपल पार्टी के खिलाफ बोलेगा, अपनी डिंग डोंग बबल बंद करानी। ये हो गया मुस्तफा खोखर हो गया, मुस्तफा नवाज खोखर, और कह रहे लुकटा पेंट उतरवाया था जो बासी हो गया। ये सारे जो है ना बड़े घर वालों के, ये बड़े घर वालों के हैं, तो बस वो थोड़ी सी चुटकी काटनी थी ना। अच्छा जी, जुमैमा गोल्ड स्मिथ, इसका ट्विटर ये रहा, इसका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जुमैमा कहते ना यहूदन है वो खकारा चमकाना। Sexual abuse in the UK sadly spans all communities, comma, socio-economic background, comma, race and faith। प्रोपोगंडा होता रहा, लेकिन मुसलमानों का खुद साख्ता सिपा सलार के तमाम अर्दली खामोश रहे, जबकि जिन पर यहूदी लाबी का इल्ज़ाम था, इनकी तरफ से मुसलमान कम्युनिटी का दिफा किया गया। जुमैमा गोल्ड स्मिथ की वफा कर गई ये बीबी, काश खान पे खान से लगना होती, खान से ये लगना होती, ऐसे वफा का हकदार, वगैरह वगैरह। पता नहीं क्या बीच की बात थी, मिसअंडरस्टैंडिंग वो साथ साथ चल रही थी, तो ये भी साथ ही जिप हमने तो नुकसान इसको थोड़ा ही पहुँचाना है। हाँ जी, इसको पार्टी को नुकसान थोड़ा ही पहुँचाना है। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का हकीकी इत्तेहादी नहीं रहा, जॉन कैरबी। ये आज एलफ डालेगा, ये क्या पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का ये उसका हकीकी इत्तेहादी नहीं रहा। अच्छा जी, ये जो जॉन कैरबी आ रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आज अमेरिका नहीं, शाम को हल्फ लेगा या रात को लेगा, टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं। ये हमारे वो जो है चौधरी आदिल बशीर साहब से पूछूंगा कि क्या ये क्या है, इस पे कि कितने बजे होनी है, वो तो आ जाता है, गूगल पे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट है सुनियो की, इन्वेस्टमेंट है शियास में। आप हैरान हो जाएंगे उधर क्या क्या बंकर्स बने हुए हैं, उधर कौन कौन से 2500 के करीब बंकर्स बने हुए हैं, उधर कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन सी बंदूकें हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये कहाँ से आए? आज आप पॉलिटिक्स को साइड में कर देते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये बता दें कल झगड़े वाली खबर मेरी ठीक है, जो नाराज होके चले गए थे बदकिस्मती से, अनलकीली ये बचपने हो रहे थे। कुरम एग्जॉस्टिवली डिस्कस नहीं हुआ? नहीं, सॉरी टू से, खुरम से ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और टीटीपी और टीटीए डिस्कस हुआ। इशू क्या है खुरम का आपके नजदीक? क्या ये आमिर वली खान साहब कह रहे हैं वहाँ जो सियासी जरगा बनाया हुआ था, जिसमें आर्मी चीफ मुलाजम जो था वो सेंटर में बैठा था, तो गवर्नर और वज़ीर आला साइड पे बैठे हुए थे,
उसमें कुर्रम जहाँ पे इतने कर्फ्यू लगे हुए हैं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, वो डिस्कस ही नहीं हुआ। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या मीटिंग हुई थी वहाँ। DGISPR कह रहे कुर्रम के ऊपर बात है, हालांकि नहीं, वो कह रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। ये अफगानिस्तान की फेवर करता है ना, ये भी अफगानिस्तान की फेवर करता है। तो ये वो कह रहा है कि खुर्रम वहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुआ। तो वो बस वो चल रहे वो सिलसिला यहाँ पे। बाकी जनाब लिए अगले प्रोग्राम में कर लेंगे, पार्ट 2 में कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ, अपडेट ये है कि मंसूर अली शाह ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को शोकॉज नोटिस इशू कर दिया। ये आज की बड़ी खबर। बाकी डिटेल आपको बताएंगे जो थी डेली डायरी फ्रॉम कोर्ट्स एंड सोशल मीडिया है जी, वो उसमें बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।